Hello students, a very good morning to all of you. This is Poonam Yadav once again and you all are welcome here. Students, yesterday I have told you summary of the chapter 3, the starting point by Milkha Singh, and today I will start explanation. So I hope the summary of the chapter is clear to all of you. So let's start explanation. 3 fortunate incidents that occurred in January 1953. When I was in recruit in the army changed the course of my life. Students, recruit means a person who has recently joined the armed forces. पर्सन जो कि रिसेंटली जिसने जो है आर्मी फोर्सेस ज्वाइन किया हो, पर्सन को रिक्रूट कहते हैं. तो ही द स्पीकर ऑफ द पोएम इज इटसेल्फ मिल्खा सिंह. उन्होंने ही जो है स्टोरी को बताया है. सो ही टोल्ड दैट three fortunate incidents, the three lucky incidents that happened in January 1953 when he was new in the army forces, and these 3 incidents had changed his life course. Means जो है at that time in January 1953 he had recently joined the army forces, और उसी टाइम जो है 3 इंसिडेंट्स जो है हैपन होती हैं उसके लाइफ में, जो उसके लाइफ की पूरी कोर्स को चेंज कर देती है. आफ्टर द मॉर्निंग रोल कॉल वन संडे देयर वाज एन अनाउंसमेंट दैट अ 6 माइल race was to be held the next day. All 500 recruits would participate in this event. The top 10 would be exempted from fatigue duty and be given a glass of milk every day during the training period. So students, roll call means calling out the list of name of requirements to check who is there, means taking an attendance. इस अटेंडेंस लिया जाता है, वही टिकट का भी जो है उनको अटेंडेंस लिया जाता है कि they all are present here or not. So after the attendance on Saturday there was an announcement. वहाँ पे जो announcement होती है that a 6 mile race will be held on the next day. On next day there will be a 6 mile race held, and 500 recruits would participate in this race. और जो है 500 करीब जो है रिक्रूट्स जो है आर्मी फोर्सेस जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एंड ही वॉज वन ऑफ देम. एंड द टॉप 10 वुड बी exempted. Exempted means होता है listen excuses from doing a particular duty. मतलब they will be free from some duties, particular duties which they have to do, जो उन्हें रोज करना होता था, कुछ लेबर्स ड्यूटीज जो है they will be free from that duty. So जो है fatigue duty means duties such as cleaning and cooking carries out in a fatigue duty. Loose clothes जो है ये सारी ड्यूटीज जो थी उनको कर रही होती थी. सो द टॉप 10 रेसर्स होंगे, उन्हें जो इन फैटिक ड्यूटी से जो है फ्री फ्रॉम हो जाएंगे, वो जो है उन्हें फ्री हो जाएंगे. और दे हैव ऑल्सो दे एंड बी गिवन ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, एंड दे विल बी गिवन अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे एज अ reward. So the next morning we reported at the starting line wearing canvas shoes, vests and khaki shorts. The whistle blew and we set off filled with a sense of mission. I ran as fast as I could. The reward of getting a glass of milk was a big treat for me, and as I had suffered great want and deprivation in my childhood, I took the lead. So next morning हम जो है वी रिपोर्टेड जो है हम जो है स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचे, जो कैनवास शूज वेस्ट और खाकी शॉर्ट्स को पहने हुए, एंड विशल ब्लू हुई और हम जो है निकल पड़े रनिंग के लिए. एंड एक सेंस ऑफ मिशन के साथ फिर मतलब सेंस ऑफ मिशन मीन्स अ फीलिंग दैट ही वॉज डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. दे वर फीलिंग विद एक्साइटमेंट दैट दे वर डूइंग एन इम्पॉर्टेंट टास्क, एंड वह जितना रन कर सकता था उतनी तेजी से वह रन किया. एंड द रिवार्ड जो था ग्लास ऑफ मिल्क was a big treat for him because he belongs to a poor family, and he had suffered a great want and deprivation in his childhood, and he took the lead. पहले और दूसरे माइल्स में जो है उसने जो है वो आगे था, बट I would rest a while if I felt tired and then run again when I saw others catching up. Luck was with me the day and I finished 6th in the race. And जो है
रेस्ट अवाइल जो है, जब वह रेस्ट करेगा, अगर वह टायर्ड फील करेगा तब वह फिर से आगे दौड़ेगा। बट जब उसने देखा कि जो है उसको सभी वॉच कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, बट लक जो था उस दिन उसके साथ था एंड उसने जो है रेस में 6th पोजीशन अचीव किया, जो है वो 6th पोजीशन पे रेस फिनिश किया। The names of the 10 recruits who qualified were announced before a large gathering of almost 300 people. Friends, even strangers, widely applauded and thumped me on my back, shouting "Shabas." I was quite overwhelmed by the attention and appreciation I received that night, and this incident became the starting point of my career as an athlete. So, student, when he finished the race on the 6th place, the names of the 10 recruits who qualified were announced. तो जो है नेम 10 रिक्रूट्स थे, उनके नेम्स अनाउंस किए गए। तो लार्ज गैदरिंग थी, वहाँ पे बहुत सारे लगभग 300 लोगों की जो है गैदरिंग थी। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो है स्ट्रेंजर्स वाइडली जो है अपलॉड कर रहे थे, उसे प्रेज कर रहे थे और उसके जो है पीक थपथपा रहे थे, शाबाश कहते हुए चिल्ला रहे थे। एंड ओवरवेलमिंग फेल्ट सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और वह पूरी तरीके से जो है एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से फिल था, भरा हुआ था। और बाय द अटेंशन ऑफ द एंड अप्रिशिएशन आई रिसीव दैट नाइट, और उस दिन जो उसे जो है अप्रिशिएशन और अटेंशन जो है उस दिन मिली थी, वो उन सारे अप्रिशिएशन से और अटेंशन से जो है पूरी तरह से जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन फील कर रहा था। And this incident became the starting point of my career as an athlete. And this incident means this appreciation, this applaud was a starting point of his career and as an athlete. Gurudev, as a part of our training, we had to run 6 miles every day. I eagerly looked forward to the end of the practice session when he would get the promised glass of milk. Our instructor was Havaldar Gurudev Singh, who had been with the army for about 15 years. Although his task was to train with the new recruits, he was a good runner himself and he continued to practice in the race. In this paragraph, जैसे as a part of our training, उनके जो है ट्रेनिंग का ऐसे पार्ट उन्हें जो है डेली 6 miles जो है रन करना होता था, दौड़ना होता था। एंड he was eagerly looked forward at the end of the practice session. He was excited that he would get a glass of milk. He would get a promised glass of milk because he had finished the finished on the 6th position in the race. So he would get the promised glass of milk. Our instructor was Havaldar Gurudev Singh, and इन्होंने जो है who had been with the army for about 15 years, जो है लगभग 15 years से जो है उनके साथ रहे हैं। एंड उनका टास्क जो था वो उन्हें न्यू रिक्रूट्स को ट्रेन करना भी था, बट वो खुद भी एक जो है बहुत अच्छे रनर रहे हैं और वो भी जो है पार्टिसिपेंट्स के साथ रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। गुरुदेव वॉज ए टैकिटर्न, नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ मैन। टैकिटर्न मीन्स रिजर्व, समवन हु डज नॉट स्पीक मच। रिजर्व टाइप मतलब जो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं और रिजर्व टाइप रहते थे। एंड नो नॉनसेंस मीन्स सीरियस एंड डायरेक्ट। तो ही टोल्ड अबाउट हिज trainer Gurudev Havaldar Singh that he was a serious type person, reserve person, and his tough exterior hide his softer gentler side. उनका जो ऊपर जो टफ एक्सटीरियर था, उनका जो टफ फिजिकली टफ दिखने वाली जो उनकी पर्सनालिटी थी, वह उनके सॉफ्ट साइड को, उनके अंदर के सॉफ्ट साइड को जो है वो हाइड कर देता था, छिपा देता था। He would run with us during training session, prodding with us with a डंडा, शॉटिंग, वह जो है हमारे साथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन में भी रन करते थे। प्रॉडिंग मीन्स जेंटली अर्जिंग देम टू रन फास्टर, मतलब वह जो है जेंटली, मतलब जो है बहुत जेंटली कहते थे तेज दौड़ने के लिए, मतलब बूस्ट करते थे। सो वह जो है डंडा जो स्टिक होती है उसे लेके वो शाउट करते थे कि रन बॉयज रन फॉर द रेजिमेंट, रेजिमेंट के लिए रन करो। रेजिमेंट जो होता है वो एक यूनिट ऑफ सोल्जर्स होता है इन द आर्मी, जिसे कि जो है सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स में बनाया जाता है। सो वो कहता था जो है जेंटली जो है उन्हें पुश करता था फास्ट रन के लिए कि जो है रेजिमेंट के लिए रन करो बॉयज। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मोटिवेटिंग मी टू स्ट्राइव टू बिकम ए वर्ल्ड क्लास एथलीट। इवन टुडे व्हेन आई थिंक ऑफ हिज डंडा आई बो माई हेड इन रिस्पेक्ट।
ही अगेन से दैट वो जो है स्ट्रांगली उनका बिलीव था कि वो एक इंस्ट्रूमेंटल मीन्स प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन हिज लाइफ इन द गेटिंग समवन डन और अचीविंग समथिंग। मीन्स उन्होंने उनका ये मानना है कि उन्होंने जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनको जो है अपने एम को अचीव करने में जो है उनके ट्रेनर जो थे गुरुदेव हवलदार सिंह, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने में। एंड आज भी व्हेन ही थिंक्स अबाउट हिज डंडा ही बो हिज हेड इन रिस्पेक्ट। मीन्स वो अपने उनके डंडे के बारे में वो सोचते हैं तो वो अपने सर को जो है रिस्पेक्ट में झुका लेते हैं। सो इट इज इनफ फॉर टुडे, so thank you, have a nice day, and note down homework for today. Students, learn word meanings which is given on the left side of your page. Learn these word meanings. Okay, we'll continue this chapter in next video. Thank you.